देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रकाअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। मुस्लिम शरीफ। फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। रियासती असम्बली में के तारक रामाराव ने आज कहा कि जीएचएमसी कानून में तरामीम मंजूरी के लिए रियासती असम्बली में पेश किए। शहर हैदराबाद शहर की बुनियाद आज से 429 साल कबल रखी गई थी और 1869 में मजलिस बल्दिया हैदराबाद कायम की गई थी और 1948 से 1955 के दौरान इसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में इनकी रहनुमाई में इस तारीखी शहर को एक तरक्की याफ्ता शहर और अलामी उफ़क़ पर शहर को एक नुमाया मुकाम दिलवाने का काम जारी है। 1000 करोड़ रुपयों की लागत से शहर में तरक्याती काम जारी हैं। जीएचएमसी के 10% बजट को हरिता हरम के लिए मुख्तस किया गया है, जिस बिना पर आज जीएचएमसी हदूद में बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। के तारक रामाराव ने मजीद कहा कि बार बार जीएचएमसी इंतखाबात में रिजर्वेशन की तब्दीली से इंतखाबात में दुश्वारियां होती हैं, इसीलिए बल्दी कानून में तरमीम के जरिए हर 2 मियाद के लिए एक ही रिजर्वेशन को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में खवातीन को भी 50% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाएगा और कहा कि 4 ज़ेली कमेटियां बनाई जाएंगी, जिसकी मदद से मुताल्लिक़ा बल्दी हल्के में तरक्याती कामों में कॉरपोरेटर को मदद हासिल होगी। 1948 నుంచి 56 వరకు 8 ఏళ్ల పాటు ఉన్న విషయం మనందరికీ కూడా తెలిసిందే అధ్యక్ష. ఆనాడే హైదరాబాద్ సెపరేట్ స్టేట్గా ఉన్నప్పుడే ఇంకా యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందే 1955లోనే హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పడింది అధ్యక్ష. హైదరాబాద్ సంస్థానంలోనే హైదరాబాద్ ప్రత్యేక రాష్ట్రంలోనే ఆనాడు హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 1955లో ఏర్పడింది. ఏర్పడడమే ఒక యాక్ట్ కింద, హెచ్ఎంసీ అనే యాక్ట్ కింద, హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అనే యాక్ట్ కింద ఆనాడు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడక ముందు ఏదైతే యాక్ట్ మనం తెచ్చుకున్నాం అధ్యక్ష, అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మరి చాలా ప్రభుత్వాలు మారినాయి అధ్యక్ష. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు 75 సంవత్సరాల్లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి, రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది ప్రముఖులు పరిపాలన చేసినారు. కానీ హైదరాబాద్ని ఒక విశ్వనగరంగా, ఒక సమున్నతమైన స్థాయిలో ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలపాలనే ఆలోచన కానీ, దానికి తగ్గ విధంగా మరి ఒక కొత్త చట్టం తీసుకురావాలన్న ఆలోచన కానీ ఏనాడు చేయలేదు అధ్యక్ష. కానీ మన ప్రభుత్వం ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే కొంత ప్రక్రియ కూడా చేసినాం అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు తెస్తున్న ఈ సవరణలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మరి ఒక ముఖ్యమైన 5 సవరణలు ఈరోజు మనం జీహెచ్ఎంసీ యాక్ట్కు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. అందులో ప్రధానమైనది మొట్టమొదటి అధ్యక్ష, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో 2015వ సంవత్సరంలోనే ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ద్వారా, ఒక జీవో ద్వారా ఆనాడు హైదరాబాద్ మహానగరంలో కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు, కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు 50% స్థానాలు, అంటే 150 స్థానాలు ఉంటే అందులో 50% స్థానాలను మహిళలకే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ద్వారా ఆనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఆమోదించుకున్నాం అధ్యక్ష. ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ద్వారా కాదు, చట్టం ద్వారానే సవరణ చేసి చట్టంలోనే పొందుపరిచి భవిష్యత్తులో కూడా మహిళా సాధికారతకు పెద్దపీట వేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ముఖ్యమైన సవరణను కూడా తీసుకొని వస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధి కూడా మేము చెప్పాలి అధ్యక్ష. 50% మహిళా రిజర్వేషన్ ఆనాడు చేసినప్పటికీ, 75 సీట్లకే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఇంకొక 4 సీట్లు ఎక్కువగా ఇచ్చి 79 స్థానాల్లో మహిళలను గెలిపించిన ఘనత కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి దక్కిందన్నమాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఈరోజు ఇది ఒక అతి ముఖ్యమైన సవరణ, ఎందుకంటే నిన్నగాక మొన్ననే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మన అభిప్రాయం అడిగింది అధ్యక్ష. అన్ని చట్టసభల్లో కూడా, అన్ని స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో, స్థానిక సంస్థల్లో కూడా
50% రిజర్వేషన్ మహిళలకు చేసినట్టయితే బాగుంటుందా? ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 243 ప్రకారం, రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 243 ప్రకారం అట్లీస్ట్ 1/3 ఉండాలని పేర్కొన్నారు అధ్యక్ష. స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో మహిళలకు 3వ వంతు అట్లీస్ట్ ఉండాలని అడిగినారు. కానీ 50% మొట్టమొదటిసారిగా 50% రిజర్వేషన్ను ఇటు పంచాయతీరాజ్ చట్టంలో, అటు మున్సిపల్ చట్టంలో, ఈరోజు ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత జిహెచ్ఎంసీ చట్టంలో కూడా ఏర్పాటు చేసిన మొట్టమొదటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొత్తం భారతదేశంలోనే ఈ విషయంలో మహిళా సాధికారత విషయంలో ముందు ఉన్నదని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా గౌరవ సభ్యులకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज वक्फ बोर्ड के महाना इजलास के बाद बताया कि आज के इस इजलास में अराकीन सैयद शाह अकबरुद्दीन निजामी, मौलवी मोहम्मद वहीद अहमद एडवोकेट, मोहम्मद जावेद एडवोकेट, मिर्जा अनवर बेग, मलिक मोतसिम अली खान वगैरह CEO वक्फ बोर्ड ने शिरकत की। वक्फ बोर्ड के इस इजलास में बोर्ड के सामने जुमला 101 नुकात थे। आज के इजलास में बात्तेफाक आरा 8 तौलियत कमेटियों को, 36 इंतजामी कमेटियों को, 6 कब्रिस्तान कंपाउंड वॉल, 3 जायदादों को किराए पर देने की मंजूरी और 4 तामीरी इजाजत दी गई। शाही मस्जिद नामपल्ली के सहन में 3 शीट की जगह पुख्ता तामीर का फैसला किया गया है। इसके अलावा इमाम बाड़ा की तामीर का भी फैसला किया गया है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से अब तक 4 रजिस्ट्रेशन को मनसूख किया गया है। उन्होंने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से किए इक़दामात पर चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के ताउन से औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का काम करने का ऐलान किया। इसके अलावा सदर वक्फ बोर्ड ने बताया कि हज हाउस से मुत्तसिल इमारत की तकमील का काम भी बहुत जल्द आगाज किया गया है। संगारेड्डी की दीनदार मस्जिद की इंतजामी कमेटी के मुताल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस कमेटी के मुताल्लिक तहक़ीक़ात का फैसला किया गया है। महबूब नगर की वक्फ कॉम्प्लेक्स में ज़ेर तामीर मुस्लिम माइनॉरिटी अस्पताल की इमारत की ज़बूहाली के मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस खुसूस में बोर्ड बहुत जल्द कोई फैसला करेगा। तकिया कबीरुद्दीन के मुताल्लिक से पूछने पर मोहम्मद सलीम ने कहा कि वो मामला कोर्ट में है, इस खुसूस में बाद में फैसला किया जाएगा। हम लोग कब्जे लेने के बाद गवर्नमेंट का परमिशन लेके, बोर्ड का परमिशन लेके गरीब लोगों को 200 गज 100 गज ऐसा नॉमिनल किराए पे जो है देंगे। हम लोग गरीब आवाम के लिए जो हेल्प कर सकता बोर्ड, गवर्नमेंट केसीआर साहब से मशवरा करके, केसीआर साहब केटीआर साहब से हम लोग बराबर जो है ना ये जमीन देने का काम चालू करेंगे। अगर ऐसी रखेंगे, आज ये बोर्ड है, हम है, कल नहीं है, दूसरे आईएस वाले कुछ भी कर सकते, तो लिहाजा हम रहे तक इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम बराबर वक्फ प्रॉपर्टी को जो है ना गरीब आवाम को कैसा फायदा पहुंचा सकते वो बराबर काम पूरा करके रहेंगे हम लोग। और ये शाही मस्जिद भी जो है अल्लाह चाहे तो शानदार हैदराबाद की नंबर 1 मस्जिद, एसी मस्जिद। जीएचएमसी नॉर्थ जोन कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ने वेस्ट मारेडपल्ली में वाकई रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव के मकान पहुंचकर वजीर मौसूफ से इनकी जायदाद की तफसीलात दर्ज की। इस मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत धरनी पोर्टल का आगाज आवाम की सहूलत ही के लिए किया है। आवाम से अपील की कि बिला खौफ व खतर अपनी जायदाद के मुताल्लिक तफसीलात इस पोर्टल में इंदराज करवाएं। आज नामपल्ली में वाक़ई एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली मोहम्मद इकबाल और डिप्टी कमिश्नर की जीएचएमसी के हमरा नामपल्ली के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। एमएलए मौसूफ ने इस मौके पर उन्होंने हल्के में मौजूद बोसीदा मकानात का मुआयना किया और बल्दी ओहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि तमाम बोसीदा मकानात के मालिकान को नोटिस रवाना करते हुए उन्हें तलब करें और उन्हें मकानों से मुंतकिली के लिए आमादा करें ताकि बारिश के दौरान किसी नागहानी हादसे से बचाया जा सके। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। और 3 साल पहले जैसे ऑलरेडी इनको नोटिस दिए।
थोड़ा पूरा वो खाली करा देंगे इसको फिर कितने बच्चे हैं देखो कितने बिल्डिंग में, अगर खुदा ना खास्ता बिल्डिंग बैठ जाती है माजिद भाई तो कितना बड़ा मसला हो जाता था बोलो। पता वो बिल्डिंग उधर से ना भाई बहुत खतरनाक है, उधर का हिस्सा बड़ा जितना भी अनाज का भट्टी का जो ऊपर का भी भट्टी भाई अभी अफजल सागर नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक घर जो 3 मंजिला बोसीदा है जिसमें 13 फैमिली यहाँ पर रह रहे थे, तो इमीडिएट जैसे ही इत्तला मिली कि कंटिन्यूशन बारिश की तरफ से वो डिलेबरेटिंग कंडीशन का घर कभी भी कोलैप्स हो सकता है। इमीडिएट नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जैसे ही इत्तला मिली उन्होंने मुझे मैसेज दिया, मैं और मेरे साथ में हमारा एरिया कारपोरेटर इमीडिएट GHMC के ऑफिसर्स को बोले, डिप्टी कमिश्नर साहब मेरे साथ मौजूद है, ACP मैडम मौजूद है, आके इसमें 13 फैमिलीज़ रह रहे थे, हम 13 फैमिलीज़ को शिफ्ट कराए हैं और इंशाल्लाह ताला अभी आके पूरा GHMC के जो टीम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की वो टीम पूरा इंस्पेक्शन करके इसके ऊपर जो भी हो सकता बेहतर एक्शन लेंगी ताकि इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा अहमियत है ये बिल्डिंगों से, तो उसी के हिसाब से हम लोग आए हैं। इंशाल्लाह ताला बराबर मॉनिटरिंग करके जो बेहतर होता है उसका इक़दाम करेंगे। आपका मलकपेट MLA अहमद बिन मोहम्मद बलाला ने आज रियासती असम्बली में अपनी मुखातिबत में हुकूमत से मुतालबा किया कि BRS स्कीम के जरिए गरीब और मुस्तहिक़ आवाम को अपने मकानात को बाकायदा बनाने का मौका फराहम करें। इस मौके पर MLA मलकपेट ने हुकूमत की जानिब से बल्दी कानून में हुकूमत की जानिब से लाई गई तरामीम का इस्तक़बाल किया। बिलखुसूस इंतखाबात में ख़वातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात को खुश आइंद करार दिया। जो म्यूनसिपल अमेंडमेंट के अंदर 4 अमेंडमेंट्स जो अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं उस अमेंडमेंट्स का खैर मकदम करता हूं। हमारी पार्टी इस अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करती है और साथ ही साथ जो ख़ास तौर के ऊपर मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूँगा कि जो आप एक कारपोरेटर डिवीज़न के अंदर 4 हिस्सों में उसको तकसीम कर 4 वार्ड मेंबर्स, वार्ड कमेटीज़ उसको बना रहे हैं, उसके अंदर उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी आप दिए हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप दिए हैं कि आप 80% ऑफ ग्रीनरी मेंटेन करना, जितने भी प्लांटेशन, स्ट्रीट लाइट्स मेंटेन करना, यहाँ तक के इलीगल कंस्ट्रक्शंस को भी वो लोग फॉलो अप करना। मैं अब आने वाले इंतखाबात है और ये बिल है जिसमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन जो गुज़िश्ता में जियो के जरिए किया गया था, अब आप इसको बिल लेकर आकर 50% खवातीन को इसके अंदर रिजर्वेशन दे रहे हैं। हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि मिनिस्टर साहब, हम कारपोरेटर्स और MLAs के टॉर्चर से तंग आ चुके हैं आम आवाम। आपको जरूरी है कि एक बार आप BRS की स्कीम लेकर आइए ताकि वन टाइम इसका इशू, इसका ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस और डिविएशंस का जो हाल है वो उसको एक सही रास्ता दिखा सके। आज जो भी लोग डिविएशन कर रहे हैं वो बल्दिया के अमले से ज्यादा कारपोरेटर्स और MLA से तंग आ चुके हैं, वो लोग ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक बार BRS स्कीम लेकर आकर इसको रेगुलराइज कराइए ताकि जितने भी बिल्डिंग्स जो बन रहे हैं वो आवाम जो बना रही है, जो लोग गरीब लोग जो बना लिए हैं, उनको राहत मिले
आपके बिल्डिंग्स भी आपका स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। तो मैं आपके जरिए इस मौके का फायदा उठाते हुए कहूंगा कि आप एक फाइनल BRS स्कीम लेकर आइए ताकि आवाम को इसका फायदा हो सके। शहर में आज सुबह से मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की सड़कें तालाबों में तब्दील। वैसे तो शहर हैदराबाद में कल से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में कई नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। पुराना शहर के हसन नगर, शास्त्रीपुरम, तालाबकट्टा, कौस नगर, उस्मान नगर, जलपल्ली, तीगलकुंटा में कई मकानात में बारिश का पानी दाखिल होने की इत्तलात मिली। शहर के टोली चौकी की बेशतर कॉलोनियों में भी बारिश का पानी दाखिल होने की शिकायत मिली है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के ओहदेदार शहर में बारिश के पेश नजर चौकस हो गए हैं। कई खस्ताहाल और बोसीदा इमारतों को मुनहदिम करने का काम किया जा रहा है। मीरपेट, बालापुर की कई कॉलोनियों की सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अलावा इसके शहर की कई अहम शाहराहों पर पानी जमा देखा गया और ट्रैफिक में सुस्ती नजर आई, जिसकी वजह से कहीं कहीं ट्रैफिक जाम भी देखा गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना की कई अजला में मजीद बारिश की पेशगोई की है। उधर महकमा अबरसानी ने भी फिर एक बार हिमायत सागर के पानी की सतह में इजाफे की बात कही है और एक इंतबाह जारी करते हुए किसी भी ज़ख़ीराब के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा सकता है और मूसा नदी से मुत्तसिल नशीबी इलाकों की आवाम से ऊंचे मुकामात को मुंतकिल होने की अपील की है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिलर नंबर 192 के पास, जहाँ लगातार जब भी बारिश होती है, जब कभी भी बारिश होती है, ये आप देखते हैं यहाँ पर ये नज़ारा आपको नज़र आ जाता है और इसमें ट्रैफिक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त ट्रैफिक पुलिस मुत्तहिद नज़र आ रही है। यहाँ पर वो अपनी जान पर खेल कर अपने आप को मुसीबत में डालकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं और आप देख रहे हैं ये रास्ता ब्रिज के ऊपर चढ़ता है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त वहाँ जाने के लिए काफ़ी लोग सोच रहे हैं, अगर हो सकता है तो लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वो कार किस तरह से वो ऊपर चढ़ रही है। उसके बाद जो सीधे लोग जाते हैं उन लोगों को तो बहुत सोच समझ कर आगे जाना पड़ता है। जी हाँ, लगातार तेलंगाना में पिछले 3 दिन से बारिश लगातार चल रही है और इस तरह की जो बारिश है, अब जो चल रही है बारिश, लगातार रात से धुआंधार मुस्तहिल लगातार बारिश है, जिसकी वजह से सारे शहर में कहीं रोडों पर ट्रैफिक जाम है तो कहीं पानी ने रोडों पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो कुछ एक नज़ारा हम आपको बता रहे हैं और आपने देखा भी है कि हमने सारे शहर के आपको कुछ नज़ारे भी आपको दिखाए हैं। आपने देखा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिलर नंबर 192 के पास, जहाँ आवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए इस जगह को पार कर रही है और कुछ लोग हैं जो जिनको पता है वो लोग इस गली से शॉर्टकट होकर जा रहे हैं। अब आप आइए मेरे साथ, मैं आगे आना बताऊंगा आपको कि यहाँ पर भी काफ़ी मुश्किलात है। ये देख सकते हैं आप, मैनहोल जो है यहाँ पर कभी भी कोई भी गाड़ी पर गिर सकता है, लेकिन यहाँ मुकामी लोगों ने यहाँ पर कुछ निशानदाही कर दी है ताकि कोई यहाँ अंदर नहीं जा सके। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत जानलेवा हो सकता है, किसी के लिए भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर किसी बाइक को यहाँ पर अंधेरे में, या फिर कोई ऑटो हो या फिर कोई कार हो, कोई भी हो यहाँ पर अगर आ जाएंगे, यहाँ से गुजरेंगे तो उनके लिए जानलेवा हो सकता है। इस वक्त आपको ये देख रहे हैं, फिर एक बार बता दूं आपको मैं, ये 192 पिलर नंबर के पास हम हर वक्त जब भी बारिश होती है तो यहाँ के वीडियोस को हम आपको बताते हैं, कैद करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमसे जानते हैं, क्या आप लोग यहाँ पे मुकामी है, यहीं पे रहते हैं आप लोग?
अंदर बारिश में यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो इसी तरह के नज़र आते हैं आपको? हाँ, पानी तो ऐसा ही होता है पानी होने के। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है इसका? अभी तो थोड़ा चल रहे गाड़ियाँ, इससे पहले तो रोड पूरा जाम हो जाता था, इधर से पूरा रोड जाम हो जाता था। चिंतल में चढ़ते थे, पलटा के गाड़ियाँ उधर से निकलते थे गाड़ियाँ, बहुत मुश्किल होती साहब यहाँ पे। जी हाँ देख रहे हैं, और भी लोग होते थे यहाँ पर, लेकिन बारिश की वजह से कुछ लोग नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम लोग इस बारिश में भी भीगते हुए भी हम भी बाजार से आ रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 घंटे से लगातार बारिश है और आपको ये बता दें कि 4 बजे ही दिन में ऐसा लग रहा था कि मगरिब हो चुकी है। इस वक्त भी अभी मगरिब नहीं हुई है, काफ़ी टाइम है, लेकिन आप देख रहे हैं कितना अंधेरा छा चुका है और बादल अभी भी काले काले नज़र आपको आ रहे हैं। लगता है कि इस बार ये जो बारिश है लगातार रात तमाम इसी तरह से लगे रहेगी। लेकिन हम आपको ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको सिर्फ और सिर्फ सिटी इंडिया न्यूज़ टीवी पर बता रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट के सामने आपके सामने आता रहूँगा। सिटी इंडिया टीवी एडिटर मोहम्मद तकी हुसैन के साथ मैं जफर खान, सिटी इंडिया न्यूज़ के लिए हैदराबाद से। निजामाबाद में आज एक नकली बाबा को बेनकाब किया गया। मासूम आवामों को ठगने वाले बाबाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे बाबा भी निकल आए हैं जो मासूम खवातीन को परेशानियों से राहत दिलासा देकर उनका जिनसी इस्तेहसाल करते हैं। आज ऐसे ही एक बाबा को निजामाबाद की आवाम ने बेनकाब करते हुए उसके अड्डे पर धावा कर दिया और बाबा को पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। भैंसा में कल शाम के औकात में हुई 2 घंटे की तूफानी बारिश से भैंसा शहर के कई नशीबी इलाके लबरेज हो गए। भैंसा शहर के टीपू सुल्तान चौक और मौलाना आजाद चौक जैसे मशहूर और मसरूफ तरीन शाहराह झीलों में तब्दील हो गए, जिससे आवाम को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बादअज़ां भैंसा म्युनिसिपल के ओहदेदार हरकत में आते हुए पानी को ड्रेन के जरिए निकाला गया। इसी तरह भैंसा में वाक़े गुड्डाना वागू प्रोजेक्ट की सतह आब में तेजी के साथ इजाफा हुआ, जिसकी वजह से महकूमा आपाशी के ओहदेदारान फौरन हरकत में आ गए और खतरे का अलार्म बजाते हुए आवाम को आगाह किया। बाद में गुड्डाना वागू प्रोजेक्ट के 2 दरवाजों को खोलकर 7,350 क्यूसिक पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ,
बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।